Let's start with a topic of problem sums. This chapter, linear equation in one variable, is divided into two parts. The first part is the normal sums which we did in last two lectures, which is all about find x. अलग अलग टाइप के इक्वेशंस आएंगे and you will have to find x. We will continue our practice in finding x, but today we'll start problem sums. And these are the two main parts of the chapter. Find x is a direct equation. For example, x, okay, no example, leave it. But you know, अब तक जितने भी sums किए find x के, अब problem sums में you have to make your own equation. You will not be given equation, you have to make your own equation. So let's start with problem sums. In problem sums, you will always find two sentences. You will always find two sentences. One sentence can be used for assumption and one sentence can be used for equation. So problem sums में you have to make your own equation. Own equation में problem sum में दो ही sentence आएंगे. First sentence you use for assumption and second sentence you use for making equation. जब तक हम sums नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा. So let us solve few sums, then you will understand what I am talking about. मैं question type कर रहा हूँ यहाँ पे. The sum of age of Sita and Geeta. सेटा गेटा हो गया. सीता Geeta. The sum of age of Sita and Geeta is 12. The difference of age of Sita and Geeta is 8. Find their ages. तो ये हो गया problem sum, and this problem sum has two equations or two sentences. The first sentence is called this, the sum of age of Sita Geeta 12. Second sentence is difference of age of Sita Geeta is 8. Let's see how to construct equation from this problem sum. So now I'll show you how this two sentence business works. One sentence is used for assumption. Assumption का मतलब होता है let. तो आंसर में क्या आएगा? let सम ऑफ एज ऑफ सीता गीता 12 है. सीता और गीता में से किसी एक को x लेना पड़ेगा. तो आई विल टेक सीता एज x. let एज ऑफ सीता इज इक्वल टू x. तो एज ऑफ गीता ऑटोमेटिकली सेंटेंस में से आता है और सेंटेंस के अंदर लिखा है सम ऑफ एज ऑफ सीता एंड गीता इज 12. अगर सीता x है तो गीता 12 माइनस x है. ये बाय हार्ट करना पड़ेगा. ये जो स्टाइल है, ये स्ट्रेटेजी है, वो बाय हार्ट करनी पड़ेगी. दैट सम ऑफ टू थिंग्स इज 12. तो एक चीज x और दूसरी 12 माइनस x. फॉर एग्जाम्पल, the sum of the amount of pocket money received by Archie and Aryan is 500 rupees. आर्ची और आर्यन की पॉकेट मनी का टोटल 500 रुपीज है. तो इसमें से अजम्पशन आएगा लेट द अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी
ऑफ आर्ची एक्स, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी ऑफ आर्यन 500 माइनस एक्स हो जाएगा। सो याद रखना सम के अंदर का अजम्पशन ऐसे होता है। अजम्पशन फेज ओवर, इक्वेशन फेज के लिए दूसरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ सीता एंड गीता इज 8। सीता गीता की एज का डिफरेंस 8 है। इक्वेशन विल बी सीता माइनस गीता इज इक्वल टू 8। बट व्हाट इज सीता? सीता इज एक्स, देयरफॉर सीता की जगह पे लिखेंगे x। व्हाट इज गीता? 12 माइनस एक्स। गीता की जगह पे 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब सिर्फ इसको देखो तो ये एक नॉर्मल सम है। इट्स अ वेरी इजी सिंपल स्मॉल नॉर्मल सम। x माइनस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। x माइनस 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि जब यहां पे ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो आगे माइनस है। सो दिस 12 विच इज अ पॉजिटिव नंबर विल बिकम नेगेटिव नंबर बिकॉज ऑफ माइनस, एंड माइनस एक्स विल बिकम प्लस एक्स क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन किए और आगे माइनस था। x माइनस 12 प्लस एक्स इज 8। x प्लस एक्स 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 8। माइनस 12 सामने जाएगा, 20 upon 2, x is equal to 10. That's the value of x, which is a normal sum. हमने काफी प्रैक्टिस की है लास्ट 2 लेक्चर में। अब जैसे ही x मिलता है, you have to go back to your assumption. Let age of सीता x, age of गीता 12 minus x, वही चीज वापस लिखो, बट इस बार let की जगह therefore age of सीता is equal to x is equal to 10. age of गीता is equal to 12 minus x, मतलब 12 minus 10 मतलब 2। तो x 10 यहां पे रख दिया और 12 minus x मतलब 12 minus 10 2। We have successfully solved one problem sum which is this। एक इक्वेशन में से assumption, दूसरे में से इक्वेशन। Let's try one more problem sum where there will be 2 sentences, one for assumption, one for equation. The question goes like this. Ram and Raj eats some amount of laddus. The sum of laddus eaten by Ram and Raj are 20. Ram eats 3 times more laddus than Raj. Find the number of laddus eaten by them. तो 2 लोग हैं, राम और राज, दोनों लड्डू खा रहे हैं, एंड स्टार्टिंग का इंफॉर्मेशन है दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। The sum of laddus eaten by Ram and Raj are 20. And based on this, you will have to assume. And what will be your assumption? Let laddus eaten by Ram x. तुम किसी को भी x ले सकते हो, राम को x ले सकते हो या राज को x ले सकते हो। मैंने राम को x ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली laddus eaten by Raj will be 20 minus x, because जब सम का सेंटेंस होता है तो ये फिक्स होता है। assumption over. Next sentence will give you equation. Right there. Ram eats 3 times more laddus than Raj. Ram is equal to 3 times मतलब 3 multiplied by laddus of Raj,
राम इज इक्वल टू 3 इंटू राज। अब राम की जगह पे x और राज की जगह पे 20 माइनस एक्स, और ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस इक्वेशन। बाय द वे ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 60 माइनस 3 इंटू एक्स 3x, minus 3x comes on left hand side, 4x is equal to 60, x is equal to 60 upon 4, 15. This is solution of this small sum. ये 1 मार्क का इजी सम है, बट डोंट फॉरगेट ये नॉर्मल सम नहीं, प्रॉब्लम सम है। x is equal to 15 के बाद you have to go back to let and write it again. सिर्फ फर्क उतना है, लेट की जगह therefore लड्डूज ईटन बाय राम इज इक्वल टू एक्स, और एक्स है 15, तो राम 15 लड्डू खाता है। एंड लड्डूज ईटन बाय राज इज 20 माइनस एक्स, मतलब 20 माइनस 15 मतलब 5। सो फाइनल आंसर इज 15 and 5. Let's take a third example. This is the last example before I start teaching you proper problem sums. The ratio of the height of Rekha and Bhavi is 3:7. The ratio of the height of Rekha and Bhavi is 3:7. If Rekha's age is subtracted from Bhavi's age, we get 80 centimeters. Find their age. हर एक प्रॉब्लम सब में 2 सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस ये है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ रेखा एंड भावी इज 3:7। और ये दूसरा सेंटेंस है कि जब रेखाज एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भावी वी गेट 80 सेंटीमीटर। द फर्स्ट ब्लू सेंटेंस विल यूज फॉर अजम्पशन, लेट एज ऑफ रेखा लेट एज ऑफ भावी। अब इसमें किसी को x नहीं लेना, ये रेशियो वाला सम है, एंड रेशियो वाला सम 3:7 का मतलब होता है रेखा इज 3x एंड भावी इज 7x। ये बाहर करना पड़ेगा, ये सम नहीं है, ये रेशियो है, और रेशियो में 3:7 है तो 3x 7x। कमिंग टू द येलो सेंटेंस, इफ रेखाज एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भावीज एज, रेखा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम भावी का मतलब होता है भावी माइनस रेखा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर लिखा है 80, यू विल ऑल्सो राइट 80। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन। दोनों सेंटेंस यूज हो चुके हैं, पहला सेंटेंस अजम्पशन, दूसरा सेंटेंस इक्वेशन। अब भावी की जगह पे क्या रखोगे, 7x, रेखा की जगह पे 3x, 7x minus 3x is 80. This is the easiest equation of the universe to solve. 7x minus 3x is 4x, 4x is equal to 80, therefore x is equal to 80 upon 4 is equal to 20. ये आ गया x की वैल्यू, और जैसे x की वैल्यू आएगी यू हैव टू गो बैक टू लेट एंड राइट इट अगेन। फर्क इतना है, लेट की जगह therefore एज ऑफ रेखा इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू x की जगह पे 20, 3 इंटू 20 60 सेंटीमीटर्स, एंड एज ऑफ भावी इज इक्वल टू 7x, 7x की जगह पे 20, 140 सेंटीमीटर। Hence you get age of Rekha and age of Bhavi. That's called problem sums, which has 2 sentences. First for assumption, second for equation. Solve the equation, find the value of x and put the value of x to find the final answer.
दिस इज अ टेबल प्रिपेयर्ड बाय मी टू टेल यू कि कितने टाइप के सेंटेंसेस हो सकते हैं, और हर एक सेंटेंस का अजम्पशन का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है. अजम्पशन, अज्यूम मतलब लेट दिस बी एक्स, दैट बी वाई, दिस बी एक्स, दिस बी 3x एक्सेट्रा. तो अजम्पशन में मैंने एक टेबल बनाया है. वील गो थ्रू दिस टेबल वन बाय वन. फर्स्ट इज सम इज 21. कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि दो लोगों की एज का टोटल है या दो लोगों की पॉकेट मनी का या दो लोगों की हाइट का. सम 21 है दो चीज का. तो पहली चीज छोटी चीज x और दूसरी चीज बड़ी चीज अपने आप 21 माइनस एक्स हो जाता. दिस यू हैव टू बाय हार्ट इट. इट्स अ स्मॉल सिंपल कॉन्सेप्ट. अगर किसी चीज का टोटल 40 है तो स्मॉल नंबर इज x एंड लार्ज नंबर इज 40 माइनस एक्स. फिर आया डिफरेंस. इफ द डिफरेंस ऑफ टू थिंग्स इज 5, स्मॉल थिंग x एंड लार्ज थिंग x प्लस 5. हाँ, भले डिफरेंस है जिसमें माइनस होता है, बट अजम्पशन में जैसे लिखा है वैसे यूज करना. धीरे धीरे सब समझ में आएगा. स्मॉल नंबर x, लार्ज नंबर x प्लस 5. रेशियो, लुक एट द कोइंसिडेंस. अभी रेखा और भावी के एज का रेशियो 3:7 ही था. तो एक नंबर 3x, दूसरा नंबर 7x. इफ द रेशियो इज 4:9, तो one number will become 4x, other number will become 9x. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 14. तो एक नंबर x, दूसरा 14 अपॉन x. हाँ, मल्टीप्लाई है तो यहां पे डिवाइड आएगा. इफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 100, one number is x, other number is 100 upon x. Two consecutive natural numbers, n numbers मतलब natural numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are natural numbers. Consecutive मतलब back to back, जैसे ये 3 and 4, 6 and 7, 9 and 10, these are called consecutive natural numbers. तो जब टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अज्यूम करने के हैं तो लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी x और दूसरा ऑटोमेटिकली x प्लस 1 हो जाता है क्योंकि वो उससे एक ही ज्यादा होता है, तभी तो वो कॉन्जिक्यूटिव होगा. नेक्स्ट नंबर बेसिकली 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो उसमें आएगा x प्लस 1, x प्लस 2. मतलब पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2. 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, पहला नंबर x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 और चौथा x प्लस 3. सो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स अज्यूम करने की स्टाइल लिखी है यहाँ पे. कोई भी सम में आया तो दिस इज हाउ यू वुड अज्यूम. फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7. 2 consecutive multiples of 7 मतलब 7 का टेबल. दिस आर कॉल्ड 2 consecutive multiples of 7. 7 के टेबल के बाजू बाजू के दो नंबर्स. दिस इज ऑल्सो 2 consecutive multiples of 7. 70 and 77 are also 2 consecutive multiples of 7. 7 10s and 7 11s. तो ऐसे नंबर्स का अजम्पशन कैसे करेंगे? लेट स्मॉल नंबर बी 7x and next number be 7 into x plus 1. 7 into x, 7 into x plus 1. इससे दो कॉन्जिक्यूटिव 7 के मल्टीपल्स मिल जाते हैं.
But instead of multiples of 7, if it is two consecutive multiples of 11, then you will write first number 11x, second number 11x plus 1. 11 के टेबल के दो बैक टू बैक नंबर्स. टू consecutive multiples of 45, तो 45x, 45x plus 1. बट ज़रूरी नहीं है कि टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ही हो. कभी कभी बोलेंगे थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 28, 35, 42. थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 7, 14, 21. तो जब थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है तो आएगा लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू 7x, second multiple of 7 is equal to 7x plus 1. Third multiple of 7 is equal to 7x plus 2. So this is how you assume three consecutive multiples. Going back to our assumption table, two consecutive multiple of 7, three consecutive multiple of 9, 4 consecutive multiple of 14. ये तीनों सेम फैमिली है और सामने देखो तुमको अजम्पशन करना आना चाहिए. दो है तो 7x, 7x plus 1. तीन है तो 9x, 9x plus 1, 9x plus 2. चार है तो 14x, 14x plus 1, 14x plus 2 and 14x plus 3. सिली मिस्टेक थी. सो वट एवर द मल्टीपल्स आर, जो भी टेबल है वो नंबर आगे और जितने भी नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वो पीछे x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4, etc. Now you can see this assumption list is continuing 11, 12, 13, 14, 15, 34 तक जा रहा है. तो हम आगे नहीं जाएंगे. We will do this in the next time. As of now, the first 10 assumptions, whatever it is, we'll try to do sums regarding them. तो ये PDF में भेजूंगा, इसको संभाल के रखना and keep referring if you get lost. And the magic words are sum, difference, ratio, multiplication या product, two consecutive natural number, three consecutive natural number, four consecutive natural number या two consecutive multiple of 7, three consecutive multiple of 9, four consecutive multiple of 14. See what I have prepared for you. Lesson 2, linear equation in one variable, problem sum practice, age sums जो आज एक एग्जाम्पल देखा, फ्रैक्शन सम्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वगैरह, प्लस माइनस सम्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिंपल टू नंबर इन रेशियो, three consecutive number, three consecutive multiple, three consecutive multiple, J, K, L. Total 60 sums are there. And these 60 sums we will cover in parts. So as of now, let us start with age sums. ये तुम्हारा होमवर्क है विच आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑन व्हाट्सएप. दिस इज अजम्पशन लिस्ट, जो होमवर्क नहीं है, इसको बस देखने का, याद रखने का. तो इसको जाने दो. ऑल राइट, प्रॉब्लम सम्स, फर्स्ट टाइप, एज सम्स. I want you to see carefully and first understand the construction of problem sum. Problem sum जब टीचर बनाती है तो हमेशा अंदर दो सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू हाईलाइट इन रेड कलर. The ratio of age of Raj and Ram is 24:13.
First sentence. Ratio of age of Jasmine and Vanshika is 1:1. Ratio of age of Rajni and Shikha is 5:6. Ratio of Jainesh and Drumil age is 1:5. And ratio of age of son and father is 1:5. All these are first sentences which you will use for assumption. X assume करने के लिए यूज करेंगे. और उसके बाद सम ऑफ द एज 74 से इक्वेशन बनेगा. रेशियो ऑफ एज ऑफ जैस्मिन बिफोर 5 years एंड वंशिका आफ्टर 5 years 4:9 से इक्वेशन बनेगा. शिखा इज एल्डर देन व्रजनी बाय 10 years से इक्वेशन बनेगा. डबल ऑफ एज ऑफ जैनेश इज 15 लेस देन ध्रुमिल से इक्वेशन बनेगा. एंड एज ऑफ सन इज 40 लेस देन फादर से इक्वेशन बनेगा. लेट मी शो यू वन बाय वन. आधा होमवर्क मैं करूंगा, आधा होमवर्क तुम्हें करना है. तो फर्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं. अजम्पशन एंड इक्वेशन. व्हाट विल यू राइट इन योर नोटबुक? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है. सॉल्यूशन में लिखा जाएगा लेट राज और राम 2 है. एज ऑफ राज, एज ऑफ राम. रेशियो इज 24:13. 24x 13x. ये पहला काम खत्म हो गया. अब दूसरा काम, सम ऑफ देयर एजेस इज 74. अब इज ना एक मैजिकल वर्ड होता है. सो वॉट एवर योर सेंटेंस इज, जिसमें से तुमको इक्वेशन बनाना है, यह है तुम्हारा सेंटेंस. उसके अंदर इज ढूंढने का, और जहां पे इज है वहां पे इज इक्वल टू लगाने का. सो दैट योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर डिसाइडेड. इज 74 years, इसके राइट साइड पे 74 है तो इज इक्वल टू 74. और इज के लेफ्ट साइड पे लिखा है सम ऑफ देयर एजेस. सम ऑफ देयर एजेस का मतलब है प्लस ऑफ देयर एजेस. एजेस ऑफ राज एंड राम. सो दैट्स योर इक्वेशन. राज प्लस राम इज इक्वल टू 74. हेंस राज प्लस राम इज इक्वल टू 74. बट राज की एज है 24x, राम की एज है 13x इज इक्वल टू 74. ये बन गया सिंपल इक्वेशन. स्टार्ट सॉल्विंग इट. 37x इज इक्वल टू 74. x इज इक्वल टू 74 अपॉन 37 इज इक्वल टू 2. 392. तो x की वैल्यू आ गई 2. x is equal to 2. That is end of first phase. अब जो भी आंसर आया, x की वैल्यू आई, उसको उठा के लेट के अंदर सब्सटीट्यूट करना बाकी है. यू हैव टू गो बैक एंड पुट द वैल्यू ऑफ x in both this. How? By writing something else in the end. लेट की जगह पे therefore age of Raj is 24x is 24x is 2 and 24 into 2 48 पहला आंसर. And again therefore age of Ram is 13x is equal to 13x is 2. Therefore age of Ram is 26. That's the end of the sum. Next sum.
बाय. मेक श्योर यू कीप राइटिंग विथ मी, तो तुम्हारा होमवर्क भी हो जाएगा. Question 2 is ratio of age of Jasmine and Vanshika is 1:1. Let age of Jasmine, let age of Vanshika. 1:1 मतलब 1x 1x, और 1x लिखते नहीं है, सिर्फ x लिखते. So 1:1 का मतलब x. That's the end of first part of the question, which is called assumption. और assumption के लिए एक सेंटेंस काफी होता है, जो है ये. अब हम करेंगे formation of equation. If the ratio of age of Jasmine before 5 years and Vanshika after 5 years is 4:9, find their ages. तो find their ages तो कुछ नहीं है. Try to understand this. ये क्या कह रहे हैं. आज जैस्मिन और वंशिका की एज का रेशियो 1:1 है, मतलब दोनों एक्स है, मतलब दोनों की एज सेम आने वाली है. बट सी हाउ आई एम डिकोडिंग दिस नाउ. सेकेंड सेंटेंस रेशियो मतलब अपॉन समथिंग इज कॉल्ड रेशियो. एज ऑफ जैस्मिन बिफोर 5 years. अब जब भी बिफोर 5 years या आफ्टर 5 years आए, तो इक्वेशन बनाने से पहले थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा. देखो मैं क्या लिख रहा हूं. आज दोनों की एज x है, बट जैस्मिन बिफोर 5 years x-5. आज x है तो 5 साल पहले x-5 थी. एंड वंशिका आफ्टर 5 years इज x+5. आज वंशिका x है तो 5 साल बाद वो x+5 है. तो ये लिखना पड़ेगा. एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द इक्वेशन. व्हाट आई वाज टेलिंग यू, रेशियो मतलब डिवाइड. किससे डिवाइड करना है? एज ऑफ जैस्मिन बिफोर 5 years, जो हमने रेडी करके रखा है, x-5 डिवाइडेड बाय एज ऑफ वंशिका आफ्टर 5 years, जो हमने रेडी करके रखा है x+5. और मैंने क्या कहा था, इक्वेशन बनाते समय इज को ढूंढो. इज डिसाइड्स हिंदुस्तान पाकिस्तान, बॉर्डर है ये, तो इज आ गया, मतलब इज इक्वल टू, एंड इज 4:9 मतलब 4/9. Why did I give you homework 2? So that you can solve such sums easily. 9 will be multiplied here, x+5 will be multiplied here. 9 into x-5 is equal to 4 into x+5. तुम्हें पूरी मेथड के साथ करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. 5x is equal to 65, x is equal to 39, 9x minus 45, 4x plus 20, 65, 9x minus 4, x 13 आएगा. तुम्हें पूरा सम सॉल्व करना है. एंड आफ्टर यू गेट x 13, you have to write something again. What you have to write? Therefore, age of Jasmine is x मतलब 13. एज ऑफ वंशिका भी x थी मतलब 30. सम ओवर. Let's see third sum. The ratio of age of Rajni and Shikha is 5:6. Let age of Vrajni 5x. Let age of Shikha
6x अजम्पशन का काम खत्म, एक सेंटेंस यूज हो चुका है। सेकेंड सेंटेंस में से इक्वेशन बनेगा इज की जगह पे आएगा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे शिखा लिखा है, तुम एस लिख दो। शिखा इज एल्डर देन व्रजनी बाय 10 years। शिखा व्रजनी के साथ इक्वल टू नहीं है, 10 साल बड़ी है। शिखा इज 10 years ओल्डर, तो व्रजनी की एज में 10 साल ऐड कर दो तो दोनों सेम हो जाएंगे। शिखा इज इक्वल टू व्रजनी प्लस 10 बिकॉज शिखा इज एल्डर देन व्रजनी बाय 10 years। ये इक्वेशन बनाने की भयंकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिनिमम 6 months पास बिफोर यू मास्टर दिस चैप्टर, सो प्लीज डोंट गिव अप प्रैक्टिसिंग। ये चैप्टर बढ़ते ही जाने वाला है जब तक मैथ्स करोगे। दिस इज द बेस ऑफ एल्जेब्रा, सो डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। शिखा की जगह पे 6x, क्योंकि ये रहा 6x। व्रजनी की जगह पे 5x। हाइश, ये कितना 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 इजी इक्वेशन है। 5x will come on left side, 6x minus 5x is equal to 10, x is equal to 10। बट इक्वेशन बनाना टफ होता है, इक्वेशन सॉल्व करना इजी होता है। अब x10 आ गया, so what will be the final conclusion? You will write hence or therefore age of Vrajni is equal to 5x is equal to 5 into 10 is equal to 50, and age of Shikha is equal to 6x, x 10 है, 6 10s are 60। That's your final answer, 50 and 60, जिस पे बॉक्स बना के हाईलाइट कर देना ताकि टीचर 1 सेकेंड में फुल मार्क्स दे दे। सम नंबर 4, ratio of Jainesh and Drumil's age is 1:5. Let age of Jainesh is equal to 1x, 1 लिखते नहीं है। Let age of Drumil is equal to 5x. Second sentence, double the age of Jainesh is 15 less than Drumil's age. अब ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। सेकेंड सेंटेंस में से इक्वेशन बनाने की प्रक्रिया, इज ढूंढो सबसे पहले, इज, और इसकी जगह पे बॉर्डर बना दो इज इक्वल टू। लेफ्ट साइड पे है डबल द एज ऑफ जैनेश, मतलब जैनेश की एज का डबल, 2 इंटू जैनेश। 15 लेस देन ध्रुमिल्स एज, ध्रुमिल की एज डी, उसमें 15 कम, -15। That's your equation. And now all you have to do is put the correct values of J and D. 2 into J मतलब 2 into X, क्योंकि जैनेश की एज X है, and D minus 15 मतलब 5X minus 15। एकदम बच्चों जैसा इक्वेशन है, बट बनाना मुश्किल है। बनने के बाद it's easy। -15 comes on left side, 2x goes on other side, 5x minus 2x is 3x, 3 gets divided, 15 upon 3 is 5, x is equal to 5। And the minute you get the value of x, जो तुमने assume किया था वो वापस लिखो, but therefore के साथ, therefore age of Jainesh is x is 5 years।
एज ऑफ ध्रुमिल इज 5x, मतलब 5 into 5 25 years. Sum over. And fifth, last sum, ratio of age of son and father is 1:5. Let सारे प्रॉब्लम्स हम लेट से शुरू होना चाहिए. लेट एज ऑफ सन इज x, क्योंकि 1 है. एज ऑफ फादर 5x, क्योंकि 1:5. Second sentence will give me the equation. Age of son is 40 less than father. और इक्वेशन बनाने का पहला रूल इज ढूंढो. इज मतलब इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है एज ऑफ सन s, एंड 40 लेस देन फादर है राइट साइड पे. 40 लेस देन फादर मतलब फादर माइनस 40. इक्वेशन बन गया है. ऑल यू हैव टू डू इज पुट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ x एंड 5x. सन मतलब x इज इक्वल टू फादर 5x माइनस 40. पप अदला बदली, माइनस 40 लेफ्ट साइड, x राइट साइड, इसलिए वो माइनस हो जाएगा. 5x माइनस x 4x. 4 सामने डिवाइड हो जाएगा. 40/4 इज 10. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10. एंड आफ्टर फाइंडिंग x यू हैव टू रीराइट दिस एंटायर थिंग. देयरफॉर करके, देयरफॉर एज ऑफ सन इज x मतलब 10. एज ऑफ पप्पा इज 5x. 5 into 10 50. यहां पे स्टॉप करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आई एम गोइंग टू सेंड यू 10 sums ऑफ एज ओनली एंड यू हैव टू फिनिश इट. मैं थोड़ा सा काम हल्का कर रहा हूं. प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर यूनिट टेस्ट 2. थैंक यू सो मच. बाय.